Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and today we are going to discuss lecture number 16 for the course Advances in Human Resource Development and Management. First of all, let me give you the review of the last lecture. In that lecture, we have discussed what are benefits. Benefits are actually indirect compensation that are given to employees in response of their membership with an organization. We have discussed in that lecture strategic perspectives on benefits, that in what way the management or organization can achieve its strategic objectives by the way of managing their benefits. So benefits can be used in respect of attracting and retaining talent and employees. With respect to these benefits, organization should be very much concerned to control the cost in terms of that organization incurs in terms of administering or giving benefits to employees. Then we have discussed what are the funding options for these benefits. So funding can be done exclusively by the employer, or it may be done partially by the employer and partially by the employee. Then we have discussed what are the types of funding. Here we said that benefits can be of two types. One that are mandatory by law, the other one are discretionary benefits or voluntary benefits. So mandatory benefits हमने ज़्यादातर डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. उसमें कहा था सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट है जिसमें उनको एम्प्लॉयज़ को वो देते हैं, हेल्थ की फैसिलिटी देते हैं. एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट है, उसमें उनको बेनिफिट मिलते हैं पेंशन के और एजुकेशन प्लान के और बच्चियों के जहेज़ के उनको बेनिफिट्स मिलते हैं. Then we have discussed certain benefits in terms of maternity or in terms of sick leave or casual leaves. That if an employee has completed 12 months of service with the particular employer, then that person is entitled to receive 14 days annual leave, 10 days casual leave, and 16 days that both casual and annual leaves are full paid, while medically sick leaves are half paid. So that person is entitled to have 16 sick leaves. Then we have discussed certain discretionary benefits. उसमें बहुत ज़्यादा perks हो सकते हैं. कंपनी कार्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनी दूसरे बेनिफिट्स देते हैं, रेजिडेंस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कॉलोनीज उनके लिए बनाते हैं कंपनी उनको फ्यूल या दूसरी इस तरह की चीज़ें देते हैं, कंपनी उनको रिक्रिएशन की बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है जस्ट टू गेट देयर एम्प्लॉयज़ रिफ्रेश्ड. Well, at the end we have discussed benefit administration. Here we said that communication of total benefits expense should be made compulsory. It means that organization should be communicating the total amount that it is incurring in terms of giving benefits to employees. So in this way they can show the importance of benefits to employees. This was the review of the last lecture. Now we are going to discuss our current lecture. Today we are going to discuss the subject of health, safety and security. So first of all, we are to discuss why organizations should go for health, safety and security, how we can define these health, safety and security, what is safety management, what is health, how organization can promote health of its employees, what is security, and how we can define this workplace balance, and how organization can go for security management of the employees as well as of the organization. So these are the learning objectives for lecture 16. So now let us start lecture 16. First of all, we are to discuss why an organization should go for the concern of health, safety and security. Here we can say that employees expect their employers to provide environments that are safe, secure and healthy. Employers are responsible to provide such a working condition or workplace situation that is
from the perspective of employee, that is safe, secure and healthy. This is their expectation, and this is logical. Well, people once viewed accidents. So here what are the views of people regarding these health, safety and security issues within organizations. Once people viewed accidents and occupational diseases. जो फैक्ट्रीज में इस तरह वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट होते हैं और जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज होती हैं एज अनअवॉइडेबल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वर्क. नाउ दिस perception has got changed, this view has got changed, and now we can see that prevention and control measures may be taken to minimize or eliminate these risks. In risk को, in diseases को, in injuries को हम minimize या even eliminate कर सकते हैं by taking certain precautionary and prevention measures. So this is not, we cannot say that this is unavoidable byproducts. Accidents are unavoidable byproducts of workplace or manufacturing facilities. Well, we can avoid these accidents or injuries by the way of adopting various prevention and control measures. Here organizations are required to pay enormous amounts against worker compensation. Last lecture में हम discuss किया था workers compensation क्या है. Here organizations are required to pay heavy amounts to employees when they have met with accidents. It may be permanent total disablement, it may be permanent partial disablement, or it may be temporary disablement, even it may be loss of death. So organizations are required to pay compensation against these losses, physical losses to employees. So by actually providing safe and healthy work environment, organization can avoid these type of accidents and consequently the cost associated with these compensation, worker compensation. Then employers cannot have healthy, the final benefit or rationale for providing healthy, safe and secure work environment, that employers cannot have healthy, motivated, satisfied and committed workforce without their addressing health, safety and security issues. ठीक है ना? So we have to address their health, safety and security issues so that we can have a workforce that is healthy, motivated, satisfied, committed and dedicated and loyal. So this was the rationale that why we should have a healthy, safe and secure work environment. Now we have to define what is health, what is safety and what is security. Well, health is a general state of physical, mental and emotional well-being. So health में simple ये नहीं है physical आपको कोई fever, कोई cold, कोई इस किस्म की illness ना हो. Simple, it also addresses that this person should not be having any mental or psychological or emotional उसको कोई disorder ना हो. ठीक है? कोई इसमें डिप्रेशन ना हो, इसमें कोई उसको एग्रेशन का प्रॉब्लम ना हो, कोई उसको फियर के प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें कवर करती है हेल्थ. नेक्स्ट टर्म इज सेफ्टी. Well, this is actually related with workplace environment. This is with respect to work setting. उसकी जो मशीनरी, जो प्लांट्स, जो असेंबली लाइन पे काम हो उसमें कितना ज़्यादा वो सेफ है. So it is a condition in which physical well-being of people is protected. So environment that is safe, it actually protects the physical well-being of people. It protects कि वहाँ पे कोई physical injury ना हो employees को. Final security है, ये usual concept है security का. We all know this. Security is a protection of employees and organizational facilities. So we are to protect protect our employees within workplace setting and our organizational facility. उसमें कोई theft, कोई इसके कोई mishappening accidents नहीं होने चाहिए security के point of view से. Well, this was how we can define health, safety and security and how these concepts are related to each other. Next, we are to see how responsibilities of HR manager and line managers are divided in terms of health, safety and security. Well, HR unit or HR manager would coordinate health and safety programs. So जो health and safety programs हैं ये coordinate करने हैं HR managers ने.
Well, HR managers are to develop safety reporting system. रिपोर्टिंग सिस्टम सेफ्टी के जो मेजर्स है उसको रिपोर्ट करने का क्या सिस्टम है. हाउ एम्प्लॉयज वुड बी रिपोर्टिंग और वुड बी एक्चुअली कम्युनिकेटिंग एनी सेफ्टी प्रॉब्लम टू द मैनेजर और कंसर्न्ड मैनेजर. देन एचआर यूनिट प्रोवाइड्स एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्टीज. इफ देयर इज एन एक्सीडेंट, सो हाउ this investigation for this accident should be conducted. Then it provides technical expertise on accident prevention. Accident को prevent कैसे करना है, इस पे technical expertise देगी HR department. HR department would develop restricted access procedures and employees identification system. तो जो कार्ड सिस्टम है या एक्सेस है डिफरेंट फैसिलिटीज बैंक में, लॉकर में किसकी एक्सेस है, किस पास कीज हैं, तो सारी जो एक्सेस है वो सारा प्लान करता है HR यूनिट. Well, HR unit would train managers to recognize and handle difficult employee situation. If you face any problem from any violent employee, then how you would be actually addressing this situation. So actually HR department would be training managers on this issue. Well, what are the responsibility in relation with health, safety and security of line managers? Line managers की क्या responsibilities हैं? Well, they would monitor health and safety of employees daily. अब जिस डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है वो रोजाना उसको टेक केयर करेगा कि हेल्थ और सेफ्टी की मेजर्स ली गई हैं कि नहीं, और एम्प्लॉयज़ की क्या कंडीशन हेल्थ और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. दे वुड कोच, लाइन मैनेजर्स वुड कोच एम्प्लॉयज़ टू बी सेफ्टी कॉन्शियस. सो दे वुड बी एक्चुअली टेलिंग और मेकिंग देयर एम्प्लॉयज़ सेफ्टी कॉन्शियस. दे वुड बी इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स. ठीक है ना, वो एक्सपर्टीज देती है हाउ टू कंडक्ट एक्सीडेंट्स. दीज लाइन मैनेजर्स मे बी रिक्वायर्ड टू पर्सनली इन्वेस्टिगेट दीज एक्सीडेंट्स. Well, these managers observe health and safety behavior of employees because they are directly required to get the work done through other people, through their subordinates. So they would be observing directly the safety behavior of employees. Then they would be monitoring workplace for security problems. कि जो उसकी domain है उसमें कोई security का problem ना हो. They would be communicating with the employees to identify potentially difficult employees. So जो difficult employees हैं, violent employees हैं, उनको कैसे identify कर सकते हैं. These line managers would follow security procedures and recommend changes as needed. तो जो सारे security plan है, procedures है, उसमें ये उसको monitor करेंगे, and if there is any suggestion then it may be given by these line managers. So this was something about the division of responsibility between HR manager and line managers in relation with health, safety and security issues. Now, what is safety management? How we can provide a safe working environment? ठीक है ना, तो एम्प्लॉयज़ को आपने ऐसी प्लेस देनी है जिसमें दे कैन फील सेफ, वेयर दे आर फ्री ऑफ एनी एक्सीडेंट्स और इंजरीज. सो दिस safety management actually requires organizational commitment to provide safe working conditions. So organization की जो top management commitment आएगी to provide safe working conditions, that would be actually ensuring this safety management to happen. Then this effort should be coordinated from the top management to include all the members of the organization. तो ये top management start होके नीचे down the low ranks of the employees तक जानी चाहिए. सारे इसमें मिल के काम करेंगे safety management. Each and every person would be a part of this safety management program. इसमें top management support लाजमी चाहिए. अच्छा, this should be reflected in management actions. Management के action से ये पता होने चाहिए that management or top executives are concerned about this safety issue. So if an engineer who is a plant manager of typical construction site, किसी फैक्ट्री का हो सकता है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट का जो प्लांट मैनेजर है, किसी जो ब्रिज सिविल वर्क जहाँ पे वो प्लांट मैनेजर है, और वो हार्ड हैट पहनता है या नहीं पहनता, ठीक है ना. अगर वो पहनता है तो लोगों को पता चलता है नाउ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद सेफ्टी मेजर्स. अगर खुद नहीं है हार्ड हैट पहनता, सो इट मींस दिस पर्सन कैन नो मोर एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू टेक सेफ्टी मेजर्स. सो दिस सेफ्टी मैनेजमेंट मेजर्स शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट एक्शंस.
Well, such efforts give rise to a safety culture that prevails in the organization. जब आप सेफ्टी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के साथ, तो फिर क्या होगा, एक कल्चर बन जाता है that is actually prevailing in the entire organization. Well, what are the benefits of having this safety management system in practice? It would pay out in terms of reduced workplace accidents and injuries. आप ज़्यादा safety management की measures लेंगे तो obviously accident कम होंगे तो injuries कम होंगी. Well, फिर ये क्या होगा, इसका further benefit क्या है? It reduces costs associated with worker compensation and fines. तो हम worker compensation क्या है, death की सूरत में, इंजरी की सूरत में, डिसेबलमेंट हो जाती है उसकी सूरत में, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन को कंपनसेशन देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ को. और इफ द कोर्ट प्रूव्स एनी नेग्लिजेंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर देन दिस ऑर्गेनाइजेशन मे बी फाइंड. तो ये वर्कर कंपनसेशन और फाइन के जो सारे एक्सपेंसेस है वो भी फिर कंट्रोल होंगे, रिड्यूस होंगे. वेल, वी कैन डिस्कस दिस सेफ्टी मैनेजमेंट system from at 3 different levels. या 3 different approaches हैं to safety management. Let us discuss what are these approaches. This slide shows approaches to effective safety management system. Here we can see that 3 different approaches जो हैं उसमें organizational approach है. First one is organizational approach. ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मेजर्स लेनी है, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच हम देखते हैं. देन इज इंजीनियरिंग अप्रोच. कुछ इंजीनियरिंग के जैसे हम इंजीनियरिंग अप्रोच ले सकते हैं. और फाइनल थर्ड वन इज इंडिविजुअल अप्रोच. सो organizational approach में what we can do, the management can design jobs that are safe. Organizations की jobs ऐसे डिज़ाइन करनी है कि उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ हो जाए, उसकी वर्क स्पेस कैसे हो, उसकी मशीनरी कैसे हो, लेआउट कैसे हो, सारा इक्विपमेंट कैसे यूज़ करेगा, सारी चीज़ें ये डिज़ाइनिंग जॉब्स में आ जाते हैं. हाउ दे शुड बी कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, हाउ दे शुड बी डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. सो वी आर टू डिज़ाइन जॉब्स दैट एक्चुअली प्रमोट वेरी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आर वर्किंग कंडीशन. तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि दैट एक्चुअली एक्सपोजेस एम्प्लॉयज टू हैजर्डस वर्किंग कंडीशन. तो डिज़ाइन ऐसे जॉब करनी है उनके लिए बड़ी सिक्योर और सेफ वर्किंग कंडीशंस हों. Then organization can take certain measures in order to promote safety management by developing and implementing safety policies. तो safety policies अगर organization की होंगी, आपने इस क्या ले इस स्टेप या इस टास्क करने से पहले ये चीज़ें इंश्योर करनी है, या आपने अगर इस एरिया में जाना है तो आपने इस हेलमेट के साथ या इस पर्टिकुलर ग्लव्स पहन के जाना है. सेफ्टी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन बनाए. ठीक है. इसी तरह जैसे वापडा तो उनका बहुत सेंसिटिव काम होता है, लाइव वर्क करते हैं वो लाइव वायर्स के साथ. तो उनके लिए ये लाजमी होता है कि आप बेल्ट पहने, आप ग्लव्स पहने और आप प्रॉपर टूल्स के साथ काम करें. सो दी इफ मैनेजमेंट हैज enacted safety policy then it can avoid certain accidents and injuries. This can be organization wide approach पे और क्या हो सकता है, दे में गो फॉर सेफ्टी कमेटीज. डिफरेंट सेफ्टी कमेटीज बना देते हैं जिसमें होता है कि जी डिफरेंट लाइन मैनेजर्स या एम्प्लॉइज एक ही कमेटी में होते हैं एंड दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ डिफरेंट वर्क प्लेस कंडीशंस आर डिफरेंट एनवायरनमेंट इन विच एम्प्लॉइज आर वर्किंग. सो सेफ्टी कमेटीज एक हो सकती है अप्रोच इन ऑर्डर टू टेक सर्टन मेजर्स एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. फिर इफ अनफॉर्चुनेटली देयर इज एन एक्सीडेंट, फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. फिर आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं उसकी, ये ना है कि आराम से बैठें. इन्वेस्टिगेशन करवाने से पता चले कि व्हाई इट हैपन and how we can avoid this type of accidents in future. So these are 4 different measures that organization can adopt, can take in order to avoid different accidents or workplace injuries. So next is जी इंजीनियरिंग अप्रोच है. इसमें सर्टन जो इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं. Here we can design work settings and equipment.
तो वर्क सेटिंग उसकी डिज़ाइन कर सकते हैं और इक्विपमेंट डिज़ाइन कर. सो हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस वर्क सेटिंग्स एंड equipments are tools that a particular person or employee is to use on his or her workplace. अच्छा, फिर कंटिन्यूसली इक्विपमेंट को रिव्यू करें कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं. डिफरेंट चीज़ें आपने कंटिन्यूसली इम्प्रूव करनी है. इसमें आप चेक करें उसकी नीटनेस, क्लीनलीनेस चेक करें, उसमें कितना ज़्यादा उसकी वर्क प्लेस को साफ रखता है, कितना ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज्ड है, कैसे उसने अपने सारे टूल्स रखे हो. सारी चीज़ें आपने चेक करें इसमें रिव्यू में, इक्विपमेंट या उसकी वर्क प्लेस को रिव्यू करें. फाइनली इंजीनियरिंग अप्रोच वुड अप्लाई सर्टन एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल. तो एर्गोनॉमिक हमने उस जॉब डिज़ाइन में भी पढ़ी. सो इट एक्चुअली deals with the interaction of human body with the workplace environment or work conditions or the work requirements of a particular job. तो उसमें कितने क्या स्टैंडिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, किस तरह काम करना है, कौन से टूल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें एर्गोनॉमिक्स में हम डील करते हैं. Final is we can actually take an approach at individual level to effective safety management practice. अच्छा, individual approach क्या है? It is actually the principle. It is the use of principles of industrial psychology. So उसमें उसका behavior या attitudes या उसके concerns या fears कैसे हम deal करने, ये individual approach. हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बना सकते हैं, इंजीनियरिंग एक कह लें कि वर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट अवॉइड एक्सीडेंट अनटिल अनलेस वी प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉइज हु वुड बी एक्चुअली परफॉर्मिंग दोज जॉब्स. So here we can achieve this objective by the way of reinforcing safety, motivation and attitude. उनको safety जो motivation और attitudes हैं उसको reinforce करें, that you are to induce employees to take these safety measures and their attitude should be towards the prevention of accidents. ठीक है ना. अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि जी the employees who are dissatisfied would be having high level of accidents. Well, certain studies do indicate this, but this is not conclusive. Consistent evidence इस तरह नहीं मिलता कि जो satisfied होंगे वो avoid करेंगे accident को, जो dissatisfied होंगे वो उनके लिए chances ज़्यादा हो जाते हैं accident. इस तरह नहीं है. जो ज़्यादा studies show करती हैं वो इस तरह के जी जितना ज़्यादा उसका fatigue हो गया है और जितना ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट काम है और उस काम में उतने ज़्यादा चांसेस हैं फॉर मीटिंग दिस वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स. सो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप उसे ओवर टाइम पे रखते हैं उसके उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एक्सीडेंट करने के. और इसमें ये भी देखा गया है कि जी जो लेट नाइट शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एक्सीडेंट होने के, बिकॉज एट द टाइम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज़ नॉट अवेलेबल. जो इंचार्ज हैं वो नहीं है, कोई भी नहीं है. सो पीपल में टेक सर्टन रिलैक्सिंग बिहेवियर. सो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलैक्स्ड और अनअटेंटिव बिहेवियर दे मे मीट सर्टन एक्सीडेंट्स. वेल, एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग. तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हैं. ठीक है ना, कि हाउ टू यूज डिफरेंट इक्विपमेंट्स, हाउ टू यूज डिफरेंट टूल्स, हाउ टू यूज डिफरेंट आप कह लें कि डिफरेंट अपरेल्स यूज़ करना, डिफरेंट चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, मशीन्स कैसे चलानी है, मशीन्स को रिपेयर कैसे करना है, अगर कोई आपने टास्क करना, कोई आपने किसी पार्ट को चेंज करना तो उसके क्या स्टेप्स हैं. सो सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हैं हम इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स. देन फाइनल अप्रोच एट इंडिविजुअल लेवल इज टू अवॉर्ड some incentives on showing better record with respect to this safety. So the people who are able to avoid workplace accident should be rewarded with incentives. जो हम individual incentives discuss किए थे, उसमें एक reason थी the people who would be avoiding accidents or injuries. So जिसका safe workplace record होगा उसे आप reward दें. So these are different three levels of approaches that we can discuss with respect of effective safety management systems.
in any organization. So by adopting these different measures we can actually avoid a number of accidents, और फिर एक्सीडेंट हमारे कम हो गए, इंजरीज कम हो गए, इंजरीज कम हो गए, हमारी वर्क कंपनसेशन और फाइन्स ये कम हो जाएंगे. नाउ वी आर टू डिस्कस, हमने प्रीवियस स्लाइड में ये कहा कि जी इफ अनफॉर्चुनेटली देयर इज एन एक्सीडेंट, सो ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी सिंपली foregoing for this accident. Instead they should be going to investigate this accident so that they can know the causes of this accident, and future they would be able to avoid this such type of accident. So यहाँ स्टार्ट में देखें जी, एक्सीडेंट हुआ है जी, कोई मिसहैप हुआ है, अनइवन चीज हुई है, इस पे आपने एक इन्वेस्टिगेशन करवानी, इंक्वायरी करवानी है. तो उसमें आप क्या करेंगे जी, नाउ द HR मैनेजर आर सर्टन लाइन मैनेजर वुड रिव्यू द सीन. जो उसका उस डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकता है, उस एम्प्लॉय का सुपरवाइजर हो सकता है, दैट पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिव्यू द सीन. अब सीन रिव्यू करना है आपने इसलिए कि जी हाउ एक्सीडेंट हैपेंड, व्हाट वाज द सिचुएशन, how they were actually behaving or how they were performing their activities. और इसमें as early as possible है ये आपने सीन को रिव्यू करना, so that you can identify the actual workplace environment that was prevailing at the time. तो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है. Then after you have had an inspection of the review scene, then you are to interview employees. आप फिर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से या वो लोग जो आई विटनेस है या उस एम्प्लॉयर के बॉस से, उसके सुपरवाइजर से आप इंटरव्यू करें, एंड यू मे कम टू नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस वेरी एम्प्लॉय हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट. तो आपको बताइए वेदर दिस पर्सन वाज अ वेरी अटेंटिव और कैजुअल टाइप ऑफ एम्प्लॉय, और इसका सेफ्टी का बिहेवियर क्या था, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था. यू कैन कम टू नो बाय कंडक्टिंग दीज इंटरव्यूज. Then after you have reviewed the scene and conducted you are required to prepare report. तो उसमें exact लिखेंगे what were the causes for this accident, and finally you have to identify recommendation in order to avoid such mishappenings in future at the workplace. Next issue is health. We have still up till now we have covered the topic of safety. Now we are going to start our discussion on health. So health में issues हैं various, और पहले हम इसमें देखेंगे issues क्या हैं, फिर हम देखेंगे how we can promote health of our employees. अच्छा, इसमें एक जो बहुत बड़ा issue है that is substance abuse. तो हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन वेस्ट में बहुत ज़्यादा. सो आई एम गोइंग टू फॉरगो दैट issue, and we are going to discuss workplace issues on these lines. That first of all we have to discuss emotional and mental health concern. जो उसके emotional health है और mental health है वो हम discuss करते हैं, because we see that employees face work, family and personal life pressure. हमारे ऊपर pressures बहुत है, demands बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, कह ले कि बहुत ज़्यादा we are overloaded with demands or pressures. अच्छा, we see that specific events, ठीक है ना, हमारी लाइफ स्पेसिफिक, डेथ ऑफ आवर रिलेटिव, डाइवोर्स हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम है, मे अफेक्ट इंडिविजुअल, ठीक है, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं. इवन किसी की जॉब चली जाती है, कोई और ऐसा, जो इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स को इन टर्म्स ऑफ काजिंग डिप्रेशन एंड स्ट्रेस. तो इसकी वजह से हमारे क्या मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ. और वेल दिस में रिजल्ट इनटू वर्क रिलेटेड कंसिक्वेंसेस. वो क्या है जी, इसमें उनके सर्टन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, टार्डीनेस हो सकती है, एब्सेंटीज्म हो सकती है, उनकी अनअटेंटिव बिहेवियर हो सकते हैं उनके सर्टन. सो these work related consequences should be avoided, should be dealt properly. आपने अब इसको डील करना है. एम्प्लॉयज के साथ तो वो चीज़ें हैं, they are facing different life problems. किसी की डेथ हो गया है, किसी का बेटा बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी को कोई और मसला है, किसी को खुद कोई बहुत बड़ी अल्लाह ना कर बीमारी हो गई. तो इन चीज़ों की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, और उनकी वजह से फिर वो ट्रांसलेट होते हैं वर्क प्लेस कंसिक्वेंसेज पे. एंड वी कैन नॉट इग्नोर दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज वी आर द एम्प्लॉयर्स, वी आर द मैनेजर्स, सो वी हैव टू सॉल्व दीज problems, or we have to deal these problems properly.
Well, here HR staff, जो HR staff है, because it is responsible for managing the people side of organization. So HR staff should intervene and refer affected employees to outside resources. ठीक है ना, आप प्रेफर करेंगे HR मैनेजर के तौर पे, आप प्रेफर करेंगे इन अफेक्टेड एम्प्लॉयज को who have shown certain workplace consequences, and you may actually send these employees to different employee assistant programs. किसी को स्मोकिंग का मसला है, किसी को डिप्रेशन का मसला है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आपने इनको रेफर करना है टू डिफरेंट कंसल्टेंट्स और डिफरेंट मैनेजर्स और साइकाट्रिस्ट हो सकते हैं. हेल्थ में ये थे जी इमोशनल एंड हेल्थ कंसर्न्स. नेक्स्ट है जी अनदर इम्पोर्टेंट इशू विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इज वर्क प्लेस एयर क्वालिटी. सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एयर? We may also discuss here what is the quality of water at that workplace, but water can be provided that is clean drinking water, but workplace air quality, that is an issue because it is no more in control of organization. अब क्या है, within certain manufacturing facilities air quality can be a serious health issue. ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के ऊपर होगा है. within certain मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जी जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं हमारे, स्पिनिंग के यूनिट्स जो हैं, जो हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, और फर्टिलाइज़र और सीमेंट प्लांट. टेक्सटाइल यूनिट में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर कंटेंट होता है. फर्टिलाइज़र में आपके वहाँ पे केमिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं. सीमेंट प्लांट पे वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. So these affect the quality of air. अब इसी एयर को सबने इनहेल करना है. So if they are going to inhale this polluted air, so their health would be seriously affected, and ultimately their personal and their family or work lives are affected adversely. अच्छा, इसमें एक तो ये वर्क प्लेस डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की वजह से होता है. फिर जो ऑफिसेज हैं उसमें क्या होता है जी, सील्ड बिल्डिंग्स होती हैं कि उसमें फ्रेश एयर नहीं आती, वेंटिलेशन बहुत कम होती है, हर जगह पे एसी चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, उसकी वजह से कमरा क्या होता है, क्लोज रखा जाता है जस्ट टू प्रिवेंट दिस एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ हीट एंड कोल्ड. तो उसमें क्या सील बिल्डिंग्स है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. अच्छा, देयर में भी सर्टन एयरबोर्न कंटेमिनेशन फ्रॉम कारपेट्स की वजह से कुछ हो जाते हैं कंटेमिनेशन. कॉपी मशीन्स जो ऑफिस में चलते हैं उसकी वजह से, एडहेसिव्स जो यूज होते हैं उसकी वजह से, और फंजाई की वजह से. दीज आर सर्टन काजेस फॉर एयरबोर्न कंटेमिनेशन दैट इज यूजुअली नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा, दिस हमने पहले हेल्थ इश्यूज पढ़े, ठीक है ना, वर्क प्लेस हेल्थ इश्यूज में हमने मेंटल और सर्टन इमोशनल हेल्थ इश्यूज पढ़े. सब्सटेंस अब्यूज के भी इश्यूज हैं लेकिन हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है. वर्क प्लेस एयर क्वालिटी का इशू, और फाइनल्स में हम देखते हैं कि स्मोकिंग एट वर्क. कुछ लोग क्या जी स्मोक करते हैं, उसकी वजह से खुद भी अफेक्ट होते हैं और जो उनके साथ बैठे होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं. वी कॉल देम पैसिव स्मोकर. सो they are actually facing the same level of danger as these smokers are facing. Well, certain government or employees have actually implemented no smoking policies within entire premises के smoking नहीं है. अब अगर no smoking policy implement कर दी गई है, so employees can they are able to adjust their lives without smoking. They can actually adjust or they can adopt this new lifestyle by having reduced smoking or by having quit smoking. अच्छा, अब फिर क्या जी यहाँ पे employers क्या offer कर सकते हैं? If still there is a problem with a particular employee, so employers may offer smoking cessation workshops, how to quit smoking, how to overcome this problem, how to overcome this urge for smoking. So they may actually start certain smoking cessation workshops. Well, these are the health issues at workplace. Now we are to discuss how we can promote health of our employees. Health promotion कैसे होगी? So
हेल्थ प्रमोशन इज अ सपोर्टिव अप्रोच। क्या ये सपोर्टिव अप्रोच है? टू फैसिलिटेट एंड एनकरेज एम्प्लॉयज, हमने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करना और एनकरेज करना है। टू एनहेंस हेल्दी एक्शंस एंड लाइफस्टाइल्स, तो उनके जो हेल्दी एक्शंस एंड लाइफस्टाइल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने फैसिलिटेट करना है और एनकरेज करना है एम्प्लॉयज को। सो दिस इज अ सपोर्टिव सिस्टम हेल्थ प्रमोशन। इसके we can discuss this health promotion at 3 different levels. फर्स्ट लेवल है जी इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तो यहाँ पे हम सिंपल एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज ऑन व्हाट इश्यूज, ऑन हाउ टू कंट्रोल वेट, ठीक है ना, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू गो फॉर न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज कैसे करनी है, पर्सनल क्या लेके इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन कैसे करनी है। वेल दीज आर एट दिस लेवल एम्प्लॉयर आर ओनली गोइंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज। अच्छा, दे मे हैव इम्पैक्ट एट सर्टन लेवल फॉर इंडिविजुअल, बट the provision of information would not be leading these individuals to avoid or to prevent certain problems. तो जब तक मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही है तो मैं खाली इंफॉर्मेशन से अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, until unless I have taken certain concrete steps. So this is not possible until there are certain lifestyle changes. ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल है, उसमें हम देखते हैं लाइफस्टाइल वेलनेस की तरफ हमने जाना। लाइफस्टाइल वेलनेस हमने एक्चुअली here individuals are required to follow those initiatives and make changes in attitudes and behavior. So at this level organization would be facilitating individuals and to follow those initiatives जो हमने पहले स्टेप में बताए ना, उनको उन इनिशिएटिव्स को फॉलो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है इंडिविजुअल्स को, so that they can make certain changes in their attitudes and behavior. तो जब तक मेरा attitude towards smoking or towards exercise or towards healthy diet change नहीं होगा, so I won't be able to change my behavior, और behavior change नहीं होगा, so I won't be able to have the benefit of this of that healthy lifestyle. Well, these at this level lifestyle wellness, जो second level है lifestyle wellness, इसे हम discuss कर सकते हैं by actually discuss it through 2 different approaches. इसमें one है जी wellness programs. Wellness programs are designed to maintain or improve employee health before problem arise. So this is actually prevention measure, precautionary measure. Okay, before the problem arise, you have to maintain or improve employee health. उससे पहले उसे कुछ facilitate कर दें। तो ये कैसे हो सकता है जी? How to actually make them to reduce cholesterol, उसे classes दें, उसको different courses करवाएं, workshop में लेके जाएं, उसे different material दें, how to control cholesterol, how to actually avoid this heart disease risk, इसको minimize या avoid हम कैसे कर सकते हैं। So this can be one option कि उनको बताएं different healthy lifestyles, different eating habits, exercise करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये बताएं, so that this person can avoid heart disease risk या उसे minimize कर सके। individualized exercise program डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना, डाइट प्लान बना दें हर एक का, और वेट कंट्रोल सिस्टम हर एक के लिए बना दें। Well, these wellness programs actually encourage self-directed lifestyle changes. These are self-directed lifestyle changes. So you have actually provided information and you have provided them with certain courses or workshops or certain training through which they can know how to reduce cholesterol, how to control weight, how to avoid this heart disease risk, how to go for individualized exercise program, how to take healthy diet. तो ये सारी चीज़ें आप उसे बताएंगे और वो खुद आप encourage हैं, they are going to have self-directed lifestyle changes, self-directed. तो सिंपल पहले इंफॉर्मेशन, अब उनको कुछ सपोर्ट दें प्रोग्राम्स की शक्ल में, उनको ट्रेनिंग की शक्ल में, कोर्सेज की शक्ल में उनको थोड़ी सी सपोर्ट दें। दीज वेलनेस प्रोग्राम्स आर प्रिकॉशनरी, आर प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड सर्टन health related problems. Well, this level 2 can be discussed from another perspective, that is employee assistance program.
दिस इज हम कहते हैं ये रिएक्शन है, रिएक्शन प्रिवेंशन और रिएक्शन मेजर्स है ये. Here employees would provide counseling and other help to employees who have emotional, physical or other personal problems. So once employees have had certain problems, emotional, physical or mental problems, ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी के हो सकते हैं, लीगल डिफिकल्टीज के हो सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज के हो सकते हैं, फाइनेंशियल काउंसलिंग हो सकती है, करियर एडवाइस हो सकती है. वंस दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम, सो इन रिएक्शन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज. तो इसमें काउंसलिंग है या दूसरी इस तरह के सपोर्ट हैं, इसे हम कहते हैं एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम. जैसे एक बंदा स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो उसको किसी कोर्स पे भेज, उसको काउंसलिंग करा दें, उसको किसी बाहर साइकाट्रिस्ट के साथ उसकी मीटिंग करा दें. अब ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये कौन पेयर करेगा? कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है सारे एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयज, कहीं पे ये शेयर हो जाते हैं एम्प्लॉयर के साथ. सो एक्चुअली दिस अप्रोच addresses a problem after they have occurred. So इसमें हमने किसको हमने प्रेफर किसे करना है? इस वेलनेस प्रोग्राम को हमने प्रेफर करना है. और इफ देर जस्ट बिकॉज टू अवॉइड दीज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड the moment we have had employees who have actually any of the problem, then we can go for employee assistance programs. तो उसमें किसी के सब्सटेंस अब्यूज का मसला हो सकता है, किसी के लीगल हो सकता है, किसी की डिप्रेशन एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स. तो वी मे सेंड दीज एम्प्लॉयज टू आउटसाइड कंसल्टेंट्स, आउटसाइड रिसोर्सेज, सो दैट दे कैन हैव प्रॉपर एडवाइस, counseling or sessions from specialists so that they can overcome their problems. तो ये reactionary measure है. अच्छा जी, हम ये health promotion को डिस्कस करते हैं जी थर्ड लेवल पे. लेवल 3, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ कल्चर. नो हमने एक हेल्थ कल्चर ही बना देना ऑर्गेनाइजेशन का. ये कैसे होगा? Well, employers believe that an organization culture that emphasizes and supports health efforts is beneficial. Employers ने अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि जी वो वाला कल्चर जो हेल्थ एफर्ट्स को सपोर्ट करता है वो बेनिफिशियल है. बिकॉज एम्प्लॉयज वुड बी हेल्दी, दे वुड बी मोटिवेटेड, लॉयल एंड वुड बी गिविंग हाई प्रोडक्टिविटी. और अगर वो हेल्दी नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस दैट दे विल बी मीटिंग विद एक्सीडेंट्स और इंजरीज. So these may lead an organization to face certain lawsuits. तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या ऑप्शन है कि you may start having stressing health efforts. एक बहुत ज़्यादा हेल्थी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो फोकस करता है हेल्थ को, वो डेवलप कर लें. Well, here organization may indulge in an integrated and broad-based effort that is supported both financially and managerially. तो आपने ये ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ कल्चर बनाने के लिए क्या इंटीग्रेटेड एक एफर्ट चाहिए कि दैट इन्वॉल्व्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर रैंक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबको इन्वॉल्व करके तो ऐसे प्लान्स, ऐसे एक्टिविटीज़ करें दैट आर इंटेग्रेटेड, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, जिसमें प्लान्स बने हुए, जिसमें स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, जिसमें सारी बजटिंग शेड्यूल सारी चीज़ हुई है. वो इस तरह के एफर्ट्स करें सो दैट बाय शोइंग दिस concerted or coordinated or holistic efforts, you can achieve or you can develop an organizational culture that focuses on promotion of health. Well, this can be done through development of procedures. अब organization इसके लिए क्या करेंगे? Procedures develop करेंगे, policies करेंगे that support health efforts. ठीक है, ऐसे procedures, ऐसी policies बनाएंगे जो health efforts को support करेंगे. अच्छा, इसमें क्या है जी? दे में गो फॉर ऑन साइड एक्सरसाइज फैसिलिटीज. आप अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो ऑफिस है, जो आपका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आप एक्सरसाइज फैसिलिटीज दे दें, जिम बना दें, फिटनेस सेंटर बना दें, वो कोई डाइट का क्लब बना दें, इस तरह डिफरेंट कैफेटेरिया बना दें जिसमें हेल्दी फूड्स को प्रमोट किया जाए. इस तरह की पॉलिसीज बना दें कि जी एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू हैव हेल्दी फूड्स और टू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल. सो दिस organization health culture, organizational health culture can be promoted by adopting, developing and adopting procedures and policies that support health efforts. Health efforts को जो
जो सपोर्ट करता है वो करना है। आप इसमें एक्सरसाइज फैसिलिटीज़ बनाएं ऑन द प्रोडक्शन फैसिलिटी, फिटनेस सेंटर, जिम्स बनाएं, क्लब्स बनाएं, डिफरेंट इस तरह हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाए। और सर्टन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एनुअली या आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे में अरेंजिंग सर्टन आउटडोर एक्टिविटीज़, या वो क्रिकेट के मैचेस करवाते हैं या इस तरह की कोई और हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सो एक्चुअली इट शोज देयर dedication or commitment with having organizational health culture. So this was that what are the health issues in an organization and how we can promote those health issues. ठीक है ना, प्रमोट कैसे करना है और उनको डील कैसे करना है हेल्थ इश्यूज को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के वेरियस रीजंस हैं। हमने स्टार्ट में कहा कि सिक्योरिटी के इट इज प्रोवाइडिंग protection to employees and organizational facilities. So by the way of surveys we have come to know that there are certain security concerns, high security concerns at workplace. ये कौन से हैं जी, यहाँ पे देख security concerns में it may include, top of the list is workplace violence. So workplace में violence क्या है जी, employees एक दूसरे के साथ fight करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शाउट करते हैं, वर्क प्लेस वायलेंस। इवन कुछ सर्टन जगह पे क्या किलिंग्स भी हो जाती हैं वर्क प्लेस पे। अच्छा, नेक्स्ट सिक्योरिटी इशू है जी इंटरनेट एंड इंट्रानेट सिक्योरिटी इश्यूज। तो वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, आपकी वो ईमेल्स चुरा ली जाती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन वो हैक कर ली जाती है सारी। सो द ऑर्गेनाइजेशंस फेस सिक्योरिटी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट एंड विद रिस्पेक्ट टू इंट्रानेट। इंट्रानेट जो कंपनी के अंदर जो उनका इंटरनेट चलता है जिसमें कंपनी की पर्सनल ईमेल्स आती जाती हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे है। देन बिजनेस इंटरप्शंस एंड डिजास्टर रिकवरी। तो डिजास्टर तो किसी टाइम भी आ सकता है, सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई हरिकेन, कुछ भी हो सकता है, इसको अर्थ फ्लड आ सकता है। तो इसमें रिलीफ कैसे होगा, इसमें कैसे आप मैनेज करेंगे, ये एक सिक्योरिटी का कंसर्न है। एम्प्लॉय फ्रॉड आ जाता है इसमें, वाइट कॉलर क्राइम, बैंक्स में अपने एम्प्लॉयज फ्रॉड करके चले जाते, डिफरेंट अकाउंटेंट्स या एग्जेक्टिव्स misappropriation, misrepresentation of certain books or certain entries. They may involve themselves within certain irregular activities or embezzlements of certain amounts. Well, employee selection and screening concern. तो हमने जब employee selection पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि आपने इस इश्यू को भी देखना है कि उसके बैकग्राउंड चेक्स और रेफरेंसेस कि ये कहाँ से है, इसका एड्रेस कहाँ पे है, बिकॉज वी आर एक्चुअली हायरिंग दीज पीपल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज ऑन वेरी सेंसिटिव इश्यूज जो सिक्योरिटी पे खुद खड़े हुए हैं, किसी भी 5 स्टार होटल में जो खुद खड़े हुए हैं सिक्योरिटी में, या एयरलाइन में, या किसी भी ऐसी सेंसिटिव जगह पे। तो उनकी इन लोगों की सिलेक्शन या किसी भी एक आम बंदे की भी जब सिलेक्शन करें तो उसकी स्क्रीनिंग आपने करना है कि जी अब इसके बैकग्राउंड चेक और इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। स्क्रीनिंग में उसके ड्रग टेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। देन देयर इज अ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम वर्क बेस पे जो है जनरल एम्प्लॉय थेफ्ट, के एम्प्लॉयज चीज़ें स्टील करते हैं, और वी मे फेस सर्टन अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व करती हैं अपने आप को अनएथिकल बिजनेस करने में। और फिर फाइनली है जी देर आर सर्टन एविडेंस दैट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की थेफ्ट या स्टीलिंग भी होती है। सो दीज आर डिफरेंट इश्यूज इन द एरिया इन द डोमेन ऑफ सिक्योरिटी। और इसमें हमने एक टॉपिक क्या कहा जी, ये है वर्क प्लेस वायलेंस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज सिक्योरिटी इश्यूज। और इसमें वायलेंस फिर कैसे आएगी, एम्प्लॉयज से आएगी। So let us discuss how we can actually identify an employee that this person would be a violent employee. So उसकी जो behavior या उसका mindset कैसा होता है, ठीक है। ये देखिए जो इसके mind में क्या है जी, this जो violent employee होगा वो क्या है, frustrated होगा, वो थका हुआ है, fatigued है, interest नहीं है, ठीक है ना, he is frustrated out of his life। इसकी history of aggression होगी,
पहले भी बहुत सा वो गुस्सा दिखा चुका है, एंगर दिखा चुका, एग्रेशन दिखा चुका है। अच्छा, दिस पर्सन हैव ऑब्सेशन और ग्रजेस। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा से क्रेज है, इसे किसी चीज़ का क्रेज है, और ग्रज इसके दिल में कोई है, नफरत, कोई गुस्सा, कोई रिवेंज है इसके दिल में। अच्छा, ये वायलेंट लोग अक्सर लोनली रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में दोस्त कम होंगे। दे फेस स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, वर्क इज सोल मेजर एक्टिविटी, उनकी कोई और पर्सनल लाइफ या उनकी कोई फैमिली लाइफ नहीं होगी। एंड दे हैव प्रॉब्लम्स विद टेम्पर या एंगर। अच्छा, अब इनके बिहेवियर या इनके एटीट्यूड्स कैसे होते हैं? दे में इन्वॉल्व देमसेल्फ इन वर्बल थ्रेट्स, लोगों को वर्बली ये थ्रेट करते हैं, मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, इस तरह। वेल यूजुअली दे ब्लेम अदर्स, कोई भी चीज़ हो इन्होंने दूसरों को ब्लेम करना होता है। दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स, दे इंटिमिडेट अदर्स, दूसरों को ये वार्न करते हैं, थ्रेट करते हैं। अच्छा, इनका बिहेवियर ओकेजनली चेंज होता रहता है, बिहेवियर इनका चेंज होता रहता है। दे में अपसेट ओवर माइनर इनजस्टिस, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ये अपसेट होते हैं। सो दीज आर हियर वी कैन सी दैट दिस इज अ प्रोफाइल ऑफ अ पोटेंशियली वायलेंट एम्प्लॉय। वायलेंट एम्प्लॉय की ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देख आइडेंटिफाई कर सकते, दिस पर्सन कैन बी अ वायलेंट एम्प्लॉय। अब हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। सो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग सिक्योरिटी इश्यूज और वायलेंस हमने डिस्कस करनी, उससे पहले हमने वायलेंट एम्प्लॉय की प्रोफाइल देखी है। So now we are going to discuss this workplace violence. It is a management of workplace, how we can go for workplace violence, management of workplace violence. Well, here we can see that employers should develop workplace violence prevention and response policies. Workplace violence को आपने prevent कैसे करना है और इसको respond कैसे करना है, इसकी policies या practices develop करनी है employer ने। कि अगर कहीं पे भी कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, कोई बंदा किसी को थ्रेट करता है, कोई शॉर्ट करता है, कोई इस तरह कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, आर्गुमेंट्स बड़े हॉट डिबेट में आ जाते हैं, उसको फिर कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है। एम्प्लॉयज रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस, एम्प्लॉयज मस्ट इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस, आपने डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने हैं। एंड रेफरल्स टू एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स, जब आप देखते हैं ना कि इस तरह की चीज़ हो गई है तो आपने डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने हैं, और इन एम्प्लॉयज़ को हु हैव सम प्रॉब्लम्स यू मे रेफर देम टू एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स। वेल, हमने कहा है कि रिस्पॉन्स भी आपने करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? वायलेंस रिस्पॉन्स टीम कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। वायलेंस रिस्पॉन्स टीम शुड फंक्शन लाइक अ सेफ्टी कमेटी, ठीक है ना। तो इसने भी सारी चीज़ों को टेक केयर करना है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड और इन ऑर्डर टू मैनेज दीज वायलेंस इश्यूज। वेल, आफ्टर अ पर्टिकुलर वायलेंट इवेंट हैज हैपेंड, सो पोस्ट वायलेंस रिस्पॉन्स आपने दिखाना है, पोस्ट वायलेंस रिस्पॉन्स। तो ये आपकी तरफ से बड़ा एग्रेसिव और बड़ा रीजनेबल होना चाहिए, और इट शुड साउंड सब्सटेंशियल, लोगों को नजर आए। अच्छा, ये कैसे हो सकता है जी? पोस्ट वायलेंस रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? यू मे सेंड दीज एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स, उन पे भेज सकते हैं। यू मे अलाउ एम्प्लॉय टाइम टू मीट विद HR स्टाफ, के जाके HR वालों से बात करो। एंड यू मे अरेंज फॉर ट्रेन्ड काउंसलर्स, तो उनके लिए कुछ आप काउंसलर्स अरेंज कर सकते हैं। सो वर्क प्लेस वायलेंस को हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं जी। और इसमें हम देखते हैं कि जी डोमेस्टिक काजेज ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस क्या हैं जी, व्हाट आर द काजेज। अब इसमें एक चीज़ डोमेस्टिक काज हो सकती है, देयर में भी अ नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड काजेज, बॉस हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, वर्किंग कंडीशंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिक काजेज ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस क्या हो सकते हैं? वायलेंस दैट बिगिंस एट होम विद फैमिली कैन स्पिल ओवर टू वर्क प्लेस, जो घर में मसले हैं वही हमारे आ जाते हैं वर्क पे, और इन द सिमिलर वेन जो हमारे वर्क के जो प्रॉब्लम्स है वो ट्रांसलेट होते हैं हमारे होम लाइफ में। वेल, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम? वी आर टू ट्रेन आवर मैनेजर्स ऑन वर्क प्लेस वायलेंस, हमने अपने मैनेजर्स को ट्रेन करना है, वर्क प्लेस वायलेंस पे ट्रेन करना है।
हेयर हमारे जो मैनेजर्स हैं, एचआर स्टाफ है, सुपरवाइजर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, दे मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पोटेंशियल वायलेंट एम्प्लॉय एंड व्हाट टू डू व्हेन वायलेंस अकर्स। ठीक है ना? सो वी आर इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज बिहेवियर्स occurrences, we are to train our managers, HR staff, employees, supervisors and other people, to train them how to identify a potentially violent employee and what to do when violence occurs। तो अब करना क्या है जी, हमने ये तो पिछली स्लाइड में देख लिया कि जी कौन सा वायलेंट एम्प्लॉय हो सकता है। अब करना क्या है, वी आर टू नोटिस वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शंस ऑफ इंडिविजुअल दैट इंडिकेट हॉस्टिलिटी। आप देखते हैं कि कहीं पे भी कोई भी लोग हॉस्टाइल हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है, उसके नॉन वर्बल और वर्बल चीज़ों से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। द हॉस्टिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज और हॉस्टिलिटी ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, आप इसको ज़रा इनडायरेक्ट वे में काउंटर करें बाय आस्किंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर लॉन्गर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है ना? सो अगर जब वो एक्सप्लेन करने में चीज़ें बताने तो उनका गुस्सा उस टाइम तक डाउन हो जाए, टेम्परामेंट कूल होता जाएगा उनका। वेल, फॉर दिस सिचुएशन वी आर टू रिस्पॉन्ड कॉमली एंड नॉन थ्रेटिंगली। हमने इन सारी सिचुएशन, इफ वी आर अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन और वी आर अ थर्ड पार्टी, देन हाउ वी आर टू रिस्पॉन्ड वेरी कॉमली एंड नॉन थ्रेटिंगली टू इंडिविजुअल्स इमोशंस। जो किसी को अब कोई फियर में है, कोई अग्रेशन में है, कोई डिस्गस्टिंग सिचुएशन में है, उनकी इंडिविजुअल के इमोशंस को आपने आइडेंटिफाई करना है, रिकग्नाइज करना है। ठीक है ना? रिजेक्ट नहीं करना उसे, ये नहीं करना यू आर रॉन्ग, ठीक है ना, फिर गलत हो जाएगा। रिकग्नाइज करना और एक्नॉलेज करना, एंड फाइनली वी आर टू डील दोज इमोशंस। कि अब हम हाउ वी कैन गेट दीज पीपल आउट ऑफ द करंट इमोशन। जो उस टाइम पे उसे फियर है या गुस्सा है या डिस्गस्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसको कैसे उस चीज़ से बाहर लेके आना है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली रिस्पॉन्ड with the person who is facing certain emotional problem or violence problem. Well, we can get assistance from HR or another neutral party. जब हम देखते हैं कि फिर ये चीज़ हो गया तो फिर HR डिपार्टमेंट या किसी और न्यूट्रल पार्टी से असिस्टेंस लें। Well, we are to notify this incident to security personnel. ये फिर सिक्योरिटी के नोटिस पे लेके आएंगे, इस तरह ये फाइट हुई है, ये एक क्या लेके एक्सचेंज ऑफ रिमार्क्स हुआ है या इस तरह हुआ, तो ये आप नोटिफाई करवा दें, कम्युनिकेट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वर्क प्लेस वायलेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्योरिटी मैनेज। सिक्योरिटी के हमने डिफरेंट इशू देखे, उसमें वर्क प्लेस वायलेंस वाज वन ऑफ देम। इंटरनेट थेफ्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर का हो जाता है, वो एम्बेजलमेंट होती हैं, मिसकंडक्ट होता है, अनएथिकल बिहेवियर होता है, एम्प्लॉय स्टीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सिक्योरिटी, अब हम देखें हाउ टू गो फॉर दिस सिक्योरिटी मैनेजमेंट। रिगार्डिंग सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एन ओवरऑल अप्रोच टू सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज नीडेड टू डील विद द वाइड रेंज ऑफ इश्यूज। जो सारे इश्यूज हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं, 8 जो इश्यूज थे, उनको डील करने के लिए एक ओवरऑल अप्रोच चाहिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। So this security management approach actually involves 3 different areas. One is organization required to go for security audit, or it may be called as vulnerability analysis. Security audit करें या vulnerability audit करें, ये एक ही चीज़ है। This is a comprehensive review of organizational security. Organization के security का एक comprehensive review करना है। It may be done by the way of internal managers and outsiders. ठीक है, इसमें आपके मैनेजर्स, आपके सुपरवाइजर, आपके चीफ, आपके सिक्योरिटी का पर्सनल हो सकता है, आपके HR डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हो सकते हैं, या ये इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, एक्सटर्नल पार्टीज में पुलिस या कोई और कम्युनिटी के लोग या कोई और आपके जो क्या लिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो भी इस तरह की आपके एसोसिएशन हैं, उसमें से कोई बंदे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वेल, सिक्योरिटी ऑडिट इंक्लूड्स सर्वे ऑफ द एरिया अराउंड फैसिलिटी। तो आप सारे जो फैसिलिटी है उसको सारा सर्वे करेंगे कि इसकी इन रोड्स कौन सी हैं, बाहर जाने के रास्ते कौन से हैं,
कहाँ से क्या लेके कौन सी लूप होल्स इस सारे प्रोसीजर में हैं। तो आपने सारा सर्वे करना है फैसिलिटी का कि इसमें क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे है और कहाँ से कोई इन हो सकता है, कहाँ से कोई आउट हो सकता है, सारा अपने सर्वे करना है। ठीक है, इसमें कौन सी छुपने की जगह, कौन से निकलने की, सारी चीज़ आपने देखनी है। देन दिस सिक्योरिटी ऑर्डर इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ द सिक्योरिटी अवेलेबल। तो आपने चेक करना है कि टू हाउ मच एक्सटेंट यू हैव सिक्योरिटी अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सिक्योरिटी की ट्रेनिंग क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल जो कितने नंबर में है, ये चीज़ आपने देखनी है। देन सिक्योरिटी ऑर्डर वुड एक्चुअली रिव्यू द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी वन ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। सो वी हैव टू एक्चुअली गो फॉर दिस रिव्यू ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कि अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है, कहीं फायर लग जाती है तो क्या करना है, कोई सुनामी आया तो क्या करना है। तो डिफरेंट चीज़ों में कोई भी चीज़ अगर हैपन होती है तो उसका रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। वेल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में पहला था ये सिक्योरिटी ऑडिट और सेकंड है जी कंट्रोल्ड एक्सेस। नाउ कंट्रोल्ड एक्सेस says that you have to control access to the physical facilities of the organization। तो organization की जो सारी physical facilities है ना, जो locations है, उसमें देखना है कि जी access should be controlled। ये ना हो कि हर जहाँ से लोग आए एंटर हो जाए, एक आधा कोई मेन गेट हो, छोटी छोटी एंट्रेंस हो जिसमें हर जगह पे चेक हो। ये ना हो कि जहाँ से कोई आना चाहे आ जाए, कोई इसमें बैक गेट ना हो, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो, फिजिकल फैसिलिटीज के अराउंड एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है ना। और इसमें द एम्प्लॉइज हु आर मोस्ट वल्नरेबल वंस, जैसे कैशियर है, ड्राइवर है, ठीक है ना, इस तरह जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो वल्नरेबल पोजीशन पे बैठे हैं, मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सेफ एंड सिक्योर एरियाज। तो अब पूरा एक प्रोसीजर और प्लान होना चाहिए कि अगर बैंक रॉबरी होती है तो उसमें कैशियर या पर्सनल कैसे डिफेंसिव पोजीशंस लेगा, एक गार्ड कैसे अपने आप को कवर देगा। ठीक है, तो ये सारा आपने प्लान करना है बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड एक्सेस। तो उसमें अपने डेजिग्नेटेड एरियाज यानी कि इधर कोई नहीं जाएगा, ये गार्ड का एरिया, ये इसका एरिया, ये कैशियर का, तो इस तरह ये आपका सिक्योरिटी का प्लान होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्रोल्ड एक्सेस। इसका थर्ड एरिया जी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, दिस इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है ना, और भी सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो इसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी है, इट कंट्रोल्स एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स। एक्सेस किसको आपने दी है, इंटरनेट को, इंटरनेट की एक्सेस किसके पास है, ईमेल करने की एक्सेस किसके पास है, ई कॉमर्स कौन कौन कर सकता है। तो ये सब के एक्सेस लिमिटेड, एक्सेस राइट्स लिमिटेड होना चाहिए, नहीं हर के पास हो, उसके पासवर्ड, उसके कीवर्ड्स हर एक के पास, चंद लोगों के पास हु आर एक्चुअली कंसर्न्ड पीपल। वेल द controlled access to computer system is important when individuals are terminated or they leave the organization। तो जो जब लोग जा रहे होते हैं ना उस वक्त चीज़ें स्टील करते हैं, ये कंप्यूटर की हार्डवेयर की थेफ्ट उस वक्त होती है, डाटा की थेफ्ट उस वक्त जब लोग टर्मिनेट होते हैं और लोग छोड़ के जा रहे होते हैं। Well, regarding the security management, now we have to discuss employee screening and selection। तो ये हमने सिलेक्शन में भी डिस्कस किया था कि जी द मोमेंट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एम्प्लॉयज यू शुड बी केयरफुली चेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल एंड चेकिंग द रेफरेंसेस दैट दिस पर्सन हैव प्रोवाइडेड। तो इसमें सिमिलर आप नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ की फेसेट ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स। तो आपने जॉब एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करना है, इसके ड्रग टेस्ट, ऑनेस्टी टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट कर ले, बिकॉज दीज आर टू बी प्लेस्ड एट वेरी सेंसिटिव पोजीशन। सिक्योरिटी में आपने लगाना है या किसी और कैश डिपार्टमेंट में लगाना है या आपने ड्राइवर लगाना है जो आपकी गाड़ी लेके चले जाए। सो यू हैव टू सेलेक्ट दीज पीपल वेरी केयरफुली बाय चेकिंग देयर बैकग्राउंड रेफरेंसेस एंड हैविंग द टेस्ट of drug test या उसके honesty tests लें the people to whom you are going to select for highly sensitive position। अच्छा, सिक्योरिटी पर्सनल देखें जी, सिक्योरिटी पर्सनल आपके पास कितना है। another critical part of security system is
adequately trained security staff in sufficient numbers. तो आपने ये भी देखना है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास सिक्योरिटी जो है वो adequately trained है in terms of using weapons or in terms of combating with certain intruders, और वो sufficient numbers में है, ठीक है, so that we can avoid certain work related problems. These were the issues related with health, safety and security. Now here we are going to discuss certain legislation that are related to security or safety at workplace with respect to Pakistan. यहाँ पे हमारे पास different laws हैं जी regarding occupational safety and health. Following legislation exists in Pakistan. Factories Act 1934. This is a main law containing organizational safety and health provisions and is applicable to manufacturing enterprises employing 10 or more workers. जो ये Factories Act है उसकी जो OSH provisions हैं वो उस पे लगेगी जिस employer के 10 or more workers हैं. अच्छा जी, Mines Act है जी 1923 का, it covers the mining sectors. Dock Laborers Act 1934 or Workmen's Compensation Act 1923 हैं. These four acts are actually deal with the occupational safety and health issues in Pakistan. These occupational safety and health issues, laws related to these issues in Pakistan mainly cover the formal sector, manufacturing industry. तो ये manufacturing में ज़्यादा apply होते हैं, services में ये काम है. So there is a need still to develop more legislation in terms of occupational safety and health in Pakistan. Now we have completed our lecture 16. Here I'm going to give you the lecture summary of the lecture. We have discussed why to go for health, safety and security, because by providing healthy and safe work environment we can avoid potential accidents and workplace injuries, so that we would be avoiding or minimizing our worker compensation as well as fines. What is health? Health is an issue whereby we can going to ensure the mental, emotional and physical well-being of employees. Safety is related with the issues where we are going to provide working conditions or work environment to employees that are safe and secure, whereby they can avoid accidents. Or security care, it is the protection of employees as well as the organizational facilities. अच्छा, here we have discussed safety management के इसमें हम 3 different levels पे different approaches ले सकते हैं. Organization level पे, industrial engineering और individual level पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमने discuss की lecture में. हेल्थ में हमने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डिस्कस किए और हमने हेल्थ प्रमोशन डिस्कस की कि हेल्थ प्रमोशन में हम एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं और एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स कर सकते हैं. सिक्योरिटी में हमने डिस्कस किया है कि जी देर आर 8 मेन एरियाज, हाई कंसर्न एरियाज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी. इसमें टॉप मोस्ट वाज वर्कर वायलेंस, वर्क प्लेस वायलेंस, कि जी हाउ वी कैन एक्चुअली डील विद एम्प्लॉयज हु आर डिफिकल्ट और हु एक्चुअली शो aggression or extreme behaviors at workplace and how we can control this workplace violence. At the end we discuss security management and how an organization would be ensuring the lives of its employees and the protection of its workplace facilities. So this was a summary of lecture 16. These are the reference books. So mainly the lecture is based on human resource management, Robert L. Mathers and John Jackson, and laws have been excerpt from this labor and employment law, a profile on Pakistan by Iftikhar Ahmed. So this was all about lecture 16. Well, thank you very much. Assalamu alaikum.